हमसे खुदा फरमाने वाला है। खुदा से कहें कि खुदा तू मुझे सुनने वाले कान दे दे, और खुदा से कहें कि तुझे मुझे कबूल करने वाला दिल अता कर। तू मेरी अकल को खोल ताकि मैं तेरे कलाम मुकद्दस की बातों को समझूं। उससे मांगे, किसके पास नहीं वो उससे मांग कर तो देखें। किसी बात की कमी हो तो उससे मांगे, वो फयाजी से देने वाला है। वो इस वक्त आपके दरमियान मौजूद है, वो आपको जांच रहा है। कौन सी जान मेरे लिए आई है, कौन सी जान रूह की प्यासी है, कौन सी जान रास्तबाजी के कलाम की प्यासी है। आज सुबह वो असुदा करने वाला है। Praise the Lord, hallelujah. Only please, hallelujah. Everyone stay in prayer and ask, say to him, Lord Jesus Christ, speak to me. I want to hear your voice. As the Bible tells us, ask and I will give you. If you want something, you must ask. He will provide you because He is Jehovah Jireh. As a child asked the milk, and the mother provided him milk. If you are God's children, ask, and He will provide you. He provided a ram to Abraham on the mountain Moriah. He can provide you right now. But first you ask, then He will give you. Say to Lord, speak to me. I want to hear your voice. I confess I'm nothing. I totally, completely depend upon you. Give me fresh anointing of the Holy Spirit. Open my mind, open my heart.
Open my understanding, that I can understand your precious, gracious word. Help me. I am hungry and thirsty. Please provide me food. Water of life through your word. I am waiting for you. I anticipating incredible blessings through your Holy Spirit. Dear God, dear Lord Jesus Christ, I cry as a blind man cried. He had a faith and he received his healing. Today I cry, I want to get my healing today. Physically and spiritually. I confess I'm nothing. I deny myself and totally, completely depend upon you. As a child, totally, completely depend on his mother and father. As we children of you, we are totally, completely depend upon you. Bless us. Thank you for your love, for your grace, for your loving kindness. I must decrease, you must increase. All glory for you. You are the King of the glory. I bless this church in the name of Lord Jesus Christ. Dear God, I pray for Brother Tariq Adnan from Lahore. Bless him, you already healed him. Solve his other problems. You can do it. Touch him in the name of Lord Jesus Christ. And heal other brothers and sisters. Those are hearing and watching this message. Bless them. Bless both sides of the pulpit. Thank you. Thank you. Thank you very much. I ask this prayer in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. The book of Jonah, chapter number 3. And I want to read a few verses before of you. As the Bible tells us, यूना की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा
और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मसाफत 3 दिन की थी, 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। सब बोले आमीन। You may be seated, please. आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कलाम मुकद्दस में से नबूवत के बारे में आज हम देखेंगे। खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ बड़े शहर नैनवा को जा। खुदा यूना से बात कर रहा है और कह रहा है नैनवा को जा, लेकिन वो नैनवा नहीं गया, वो तरसीस चला गया। क्यों? खुदावन ने कहा नैनवा में जा, वो नैनवा में नहीं गया। आप पढ़ लेना घर में जाकर, आपको पता फिर खुदावन ने किस तरह उसे नैनवा में भेजा था। वो जहाज पर सवार होकर तरसीस जा रहा था, तो रास्ते में जहाज समुद्र के अंदर आफत आ गई, और उसके बाद सबने, और जितने भी वहां पर मलाह थे, इंतजामिया थे, उन्होंने कहा भाई तूफान थम नहीं रहा, अपने अपने देवताओं को याद करो, अपने अपने खुदाओं को। तो नीचे यूना नबी सोया हुआ था, नीचे यूना नबी रेस्ट कर रहा था, तूफान में रेस्ट कर रहा था। तो जब उस तक खबर पहुंची तो उसने कहा आई डिड दिस मिस्टेक, मेरी वजह से तुम पर तूफान आ रहा है। अब सबसे पहली बात तो यह देखें, नबी यहां पर नाफरमानी कर रहा है। खुदा ने बोला निनवा को जा, नबी तरसीस को जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नबी यहां पर क्या कर रहा है? हाँ, तो जो नाफरमानी करे वो नबी हो सकता है? थोड़ा दिमाग लोगों के बंद है ना, दिमाग बंद है लोगों के। आज का उन्वान है क्या 1977 के अंदर ब्रदर बैनम ने पेशन गोई की थी, नबूवत की थी, प्रोफेसी की थी, या प्रेडिक्शन की थी? सब एक बात को पकड़ के शोल्डर, उसने नबूवत की थी और वो पूरी नहीं हुई। 1933 के अंदर 7 रोयाएं ब्रदर बैनम ने देखी थी। पहली रोया जो ब्रदर बैनम ने देखी थी वो मुसोलिनी के बारे में थी, और मुसोलिनी जो है वो डिक्टेटर था इटली के अंदर, जो बोला वो पूरा हुआ। फिर हिटलर के बारे में जो बोला वो पूरा। फिर 3 इज़म्स के बारे में बताया, नाजीज्म, फाशिज्म एंड कम्युनिज्म। इन तीनों के साथ क्या होगा? तीसरा वाला पहले 2 को निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो भी बात पूरी हुई। फिर चौथी बात, दुनिया के अंदर बड़ी बेहयाई होगी, औरतें अपना लिबास उतारना शुरू करेंगी, और जैसे अदन के अंदर उन्होंने पत्ते पहने थे हवा और आदम ने, ऐसे ही खवातीन पत्ते पहनना शुरू कर देगी। और ब्रदर बैनम की जिंदगी के दौरान ही पेरिस के अंदर एक फैशन शो हुआ, और उसमें वो लड़की ऐसे ही कपड़े पहन कर आई, वो भी पूरी हुई। 5वीं ड्राइवरलेस कार आएगी, एक ऐसी कार आएगी, एक ऐसी गाड़ी चलेगी जो ड्राइवर नहीं होगा, बस बटन दबाओगे और वो आपको आपकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचा दे। तो वो भी दुनिया में चल रही है।
छठी। अमेरिका के अंदर आज तक कभी कोई खातून, कोई लेडीज जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो नबी ने कहा था या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनेगी। कमला हैरिस, वो भी बात पूरी हुई। अबे भाई, जिसकी 6 पूरी हो गई, तू 7वीं देख रहा है, 6 को क्यों नहीं देख रहा? इसका मतलब यह है कि तेरे देखने में गड़बड़ है। अगर 6 पूरी हुई तो 7वीं क्यों ना होगी? नहीं जी, वो उसने बोला 1977 के अंदर दुनिया तबाह हो जाएगी। भाई बोला तो खुदा ने यूना को भी है कि नैनवा जा, वो तरसीस जा रहा है। अब यूना में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारे सोचने में गड़बड़ है। अब जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको तो मानना ही पड़ेगा। हम भी मानते हैं। क्या आप सब मानते हैं यूना नबी है? 100% नबी है। तो क्या आप सब मानते हैं उसने नाफरमानी की? यस। तो क्या नबी से हट गया वो? क्या खुदा ने बोला नहीं भाई नहीं? ए भाई यूना, तू हो गया फेल, इसीलिए मैं किसी और शख्स को पकड़ूंगा और उसे अपना नबी बनाऊंगा। खुदा तुम्हारी तरह अपना दफ्तर नहीं चलाता है। ब्रदर बेनम कहते हैं खुदा का पहला फैसला ही परफेक्ट होता है, इसीलिए उसे दूसरा फैसला नहीं करना पड़ता है। खुदा गलती नहीं करता है। जी भाई, पढ़ें जरा, दोबारा पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा। अरे भाई, शहर नैनवा को जा, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म दिया है, देता हूं। अच्छा जी, हुक्म खुदा ने क्या दिया था? जाके उनको बोल दे 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगी। उसने मुनादी कर दी, यस। नबूवत कर दी, यस। खुदा का कलाम बोल दिया। आमीन। खुदा ने बोला ना ऊपर, यस। तुम बोलोगे नहीं, उसने तो मुनादी। ओ भाई, ऊपर क्या लिखा? खुदावन का कलाम। जब खुदावन का कलाम नाजिल होता है वो नबूवत होती है। आमीन। जो बाइबल में लिखा हुआ है वो नबूवत है। आमीन। यस। हालेलुया। लफ्जों की गेम में मत घूमो, यस सर, वरना घूम जाओगे। यस। इसलिए सीधी सीधी बात करो और सीधी सीधी बात समझो। आमीन। आगे पढ़े। बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। 1 दिन की राह चला और उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। हो गई पेशन कोई? नबूवत हो गई, यस सर। मुनादी हो गई। यस। सुन लो, खुदावंद का कलाम मुझ पर दूसरी बार नाजिल हुआ है। यस सर। और खुदावंद ने फरमाया है मैं उसका पैगाम लेकर आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ और खुदावंद ने मुझे आपके पास भेजा है। और पैगाम यह है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। अब मैं सब पादरियों को कहता हूँ जो कलाम को ठीक तरीके से नहीं समझते, अपनी समझ से समझते हैं या अपनी सेमिनरी के मुताबिक समझते हैं, मुझे बताओ 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हुआ था? नो सर, नेवर, नो नेवर। यस। तो फिर तो पेशन गोई, नबूवत झूठी हो गई। आरिफ भाई, इनकी दिमाग जो है बहुत छोटे हैं, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ खादम और खुदा का बनाया हुआ खादम, उसमें बड़ा फर्क होता है। आमीन। यस सर। खुदा का भेजा हुआ मुनाद जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक सोचेगा। आमीन। लेकिन इंसान का भेजा हुआ मुनाद जो है वो
अपनी तालीम या अपने इल्म के मुताबिक सोचेगा। यस सर। दिस इज अ बिग डिफरेंट। व्हेन गॉड कॉल्स यू एंड द व्हेन मैन कॉल्स यू, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इट। तो आप मुझे बताओ, नबूवत कर दी स्टीफन भाई? यस सर। खुदा आपको बोल दे, जाके बोल दे कश्मीर कॉलोनी 40 दिन के बाद तबाह, कराची तबाह होगा। वैसे भी सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कहता है कराची ने पहले तबाह होना है, क्योंकि ये समुंदर के किनारे पर है। और वैसे भी जो पहले ही तबाह हो, उसे तबाह करने की जरूरत ही क्या है? हालेलुया। ये दुनिया वैसी तबाही बर्बादी के दहाने पर है। यस सर। उसको क्या बर्बाद करना है, उसको क्या मारना है जो पहले ही मरा हुआ है। आमीन। यस सर। तो स्टीफन भाई उठते हैं और जाकर ऐलान करते हैं, गलियों में डबल रोड पर खड़े हो जाते हैं, एक बड़ा लाउड स्पीकर अपने कंधे पर रख लेते हैं और जोर जोर से कहते हैं, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ है और खुदावंद ने मुझे भेजा है और खुदावंद ने कहा है कि कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कराची जो है 40 दिन के बाद तबाह हो जाएगा। यस। किसने भेजा है? खुदावंद ने। और हैरी भाई दिन गिनना शुरू करते हैं। नबूवत की है भाई स्टीफन साहब ने। 40 दिन के बाद कराची तबाह होगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन गुजर जाते हैं और 41वां दिन आ जाता है और कराची तबाह नहीं होता। अब स्टीफन भाई को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? झूठा नबी बोलोगे? जी जी, हाँ जी, क्योंकि तबाही नहीं हुआ। यस सर। बोलोगे ना? यस। किसी में हिम्मत है यूना को झूठा नबी बोले? नो सर। किसी में हिम्मत है? एक मिनट, वो जाहिल पादरी होंगे जो बोलेंगे। यस सर। खुदा का नबी सच्चा होता है। आमीन। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लोगों का बंद है। यस सर। तो 40 दिन के बाद तबाह। अब यूना को निकालो बाइबल में से। ये मैं उन पादरियों को कह रहा हूं जिनको बाइबल की अलिफ बे भी नहीं आती है। यस सर। ABC भी नहीं आती है और वो आलम बने हुए हैं। यस सर। झूठा नबी, झूठा नबी। और जाओ बाइबल पढ़ो। आमीन। यस। यूना को क्या बोलोगे फिर? सिचुएशन देखनी पड़ती है। यस। उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है, टेक्स्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। यस सर। हर चीज देखनी पड़ती है। तो तुम तो फौरन बोल दोगे तुम जैसे हो तो नहीं नहीं यूना झूठा नबी है, क्योंकि तुम तहकीक नहीं करते। यस। सुनी सुनाई बात करते हो। आमीन। यस सर। हाँ, आप खुद तलाश करो या मैं बताऊं? आमीन। बताता हूं, सब्र करो। जरा ब्रदर बैनम की पेशन भी पढ़ो। ब्रदर बैनम ने जो प्रेडिक्शन की थी उसको देखो। मैसेज का नाम है टीचिंग ऑन मोसेस, 560513। ब्रदर बैनम ने क्या फरमाया है? नबूवतें पूरी नहीं, तुम्हें पता ही क्यों नहीं है? अब तुम नुक्ता चीनी की ऐनक पहनकर बात कर रहे हो, तुम्हें तो कोई चीज नजर ठीक आएगी नहीं। यस सर। ऐनक नंबर गलत पहना हुआ है आपने। यस। नंबर ठीक पहनो, आमीन। फिर क्लियर नजर आएगा। यस सर। सुने जरा, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं आपको।
आपको समझ लग जाएगी आज। आमेन। और जो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं दुनिया भर में, उनको भी समझ लग जाएगी। यस सर। और फिर भी अगर कोई कौवे की औलाद होगा तो उसको समझ नहीं लगेगी। यस सर। लेकिन अगर कोई कबूतर होगा आमेन, तो उसको समझ लगेगी। आमेन। अगर कोई गिद्ध की औलाद होगी तो उसको समझ नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई उकाब होगा, आमेन, हालेलुया, उसको समझ लगेगी। आमेन। और वैसे भी सबको समझ क्यों लगे? यस, खुदा समझाने नहीं चाहता। यस, खुदा चाहता है तुम फंसे रहो अपने कैद खानों में। खुदा चाहता है तुम मुजरम बन के जिंदगी गुजारो, तो फंसे रहो। यस सर। कि तुम खुदा के कलाम को नहीं मानते। आमेन। तो खुदा क्यों चाहेगा तुम निकलो? खुदा तो चाहेगा फंसे रहो, क्योंकि तुम कलाम को रद्द करते हो। यस, अपने अकीदों के मुताबिक चलते हो। यस, मिशनों तंजीमों के कैद खानों में फंसे हुए हो। यस सर। आमेन। तो जब तक वहां फंसे हुए हो तब तक खुदा के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। यस सर। लेकिन जब कलाम के साथ खड़े हो जाओगे, आमेन। फिर खुदा आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। यस, आमेन। क्योंकि खुदा सिर्फ अपने कलाम की हिफाजत करता है। यस सर। और ब्रदर बैनम कहते हैं जहां कलाम ही नहीं वहां खुदा क्यों हिफाजत करे किसी? यस, आपके अंदर कलाम ही नहीं, खुदा क्यों करे? आमेन। जिस चर्च के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है, जिस कलीसिया के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है, Yes. जिस घर के अंदर खुदा का कलाम ही, रसूमात है, अकीदे हैं, यस, तालीमी डिग्रियां हैं, वहां खुदा क्यों हिफाजत करेगा? Yes. खुदा तालीमी डिग्रियों की हिफाजत नहीं करेगा, आमेन। खुदा अपने कलाम की हिफाजत करेगा। आमेन, हालेलुया। हाँ, बैठे। खुदा तुम्हारी बेकार डिग्रियों की क्यों हिफाजत करे? यस सर। जो कागज का टुकड़ा है, खुदा अपने कलाम की हिफाजत करेगा। आमेन। इसलिए खुदा डिग्रियों से नहीं मिलता है, यस सर। खुदा पाक रूह की कुदरत से मिलता है। आमेन। जी सुने नबी ने क्या फरमाया है। फिर मैं आगे चलता हूं। 21 पैराग्राफ नंबर 21। एंड रिमेंबर, और याद रखो, आई predict that before the great total annihilation, which I don't say, the Lord told me this, but I believe there will be something happen either between now or at the time in 77. It may come at this hour. But between now and 77, I predict that either a great destruction or a total annihilation of the entire earth between now and 70. अब सुने, जिनको इंग्लिश आती है उनको समझ लग गई है। आमेन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या नबी ने बोला है। सुने, अब याद रखें ना, अब याद रखें, आई predict that, मैं ये पेशनगोई या अंदाजा लगा रहा हूं। यस, predict का मतलब होता है अंदाजा लगाना। यस, देखें, महकमे मौसमियात वाले प्रेडिक्शन करते हैं, नबूवत कभी नहीं करते। यस सर। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेसी एंड द प्रेडिक्शन। यस, इफ यू डोंट नो, यू हैव टू नीड अ स्टडी ऑफ इट। यस, तो वो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रोफेसी नहीं करते। यस सर। अगले हफ्ते मौसम ऐसा ऐसा रहेगा, यस, बादल छाए रहेंगे, फला दिन बारिश होगी, और उस दिन कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। यस सर। अब क्या वो महकमे मौसमियत वाले झूठे हैं? कहां बैठ के स्टडी करते हैं आप लोग? वो कब कह रहे हैं कि आई प्रोफेसी?
वो कब कह रहे हैं कि हम नबूवत करते हैं? नबूवत में और प्रेडिक्शन में, प्रोफेसी में और प्रेडिक्शन में फर्क होता है। देखिए, प्रेडिक्शन जो होती है वो साइंसी मुआयने पर मुयस्सर होती है। आप साइंस के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, हालात के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, और जैसे आपके चौगिर्द हालात चल रहे होते हैं उनकी बिना पर प्रेडिक्शन करते हैं। और नबी ने भी प्रेडिक्शन की 77 के बारे में। वो साफ कह रहे हैं, आई प्रेडिक्ट। तो उसमें अगर वो प्रेडिक्शन पूरी हो जाए ना हो, इससे ना वो सच्चे हैं ना झूठे हैं। उन्होंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया महकमे मौसमियात ने। हो गया तो ठीक, ना भी हुआ तो ठीक। इसको क्या कहते हैं? जब वो प्रेडिक्शन करें कि बारिश होगी और बारिश ना हो, जब वो प्रेडिक्शन करें कि बारिश होगी और बारिश होती है, एक दफा हो गई एक दफा नहीं हुई, आप उनको क्या बोलेंगे, झूठे या सच्चे? क्या बोलोगे? कुछ भी बोल ही नहीं सकते। एक दफा पूरी हुई एक दफा नहीं हुई। हाँ, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल, ना इधर ना उधर। वो न्यूट्रल है। ना आप उनको झूठा कह सकते हैं ना आप सच्चा कह सकते हैं। इसका कोई मायने नहीं है। इससे कोई साबित नहीं होता कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं। तो लोग ऐसी बातें पकड़ के फजूल के अंदर उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसी तरह नबी ने क्या बोला है? आई प्रेडिक्टेड बिफोर द ग्रेट टोटल इनहिलेशन of which I don't say, the Lord told me। दुनिया की तबाही तो होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि खुदावन ने मुझसे कहा है। साहब बोला ना भाई। तो इससे सच्चा बंदा आपको कहां मिलेगा? इससे तो साबित होता है कि वो सच्चा खुदा का खादिम। आमीन, हालेलुया। इससे तो सच्चा साबित होता है। यस सर। कि भाई मैं नहीं कह रहा कि खुदा ने मुझे बताया है। मैं हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि दुनिया के हालात ऐसे हैं। इन हालात से ऐसे लगता है कि 77 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे सुने, उसने बोला इसी घड़ी भी हो सकती है। आमीन। तुम 70 को पकड़ के बैठे हुए हो। सर, तुम 77 को पकड़ के बैठे हुए हो। नबी ने तो बोला इसी घड़ी भी खत्म हो सकती है। यस सर। व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रेडिक्शन, यस, नॉट अ प्रोफेसी। यस। प्रेडिक्शन जो है वो मैंने बताया अंदाजे पर होती है। लेकिन नबूवत अंदाजे पे नहीं होती है। प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ओ भाई बाहर नहीं जाना, गर्मी बहुत है, बाहर नहीं निकलना, बाहर गया बीमार हो जाएगा। व्हाट इज दिस? प्रेडिक्शन। और वो जाता है बीमार हो जाता है। तब वो नबी थोड़ी बन गया। प्रेडिक्शन। फिर एक मर्तबा कहते बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा बीमार हो जाएगा, वो नहीं होता। तो क्या झूठा ना बंदा है वो? यार पता नहीं कहां बैठ के लोग स्टडी करते हैं इन चीजों से। सब वो कह रहे कि खुदावन ने मुझे ये, विच आई डोंट से, द लॉर्ड टोल्ड मी दिस। देखिए कितना क्लियर है। मैं नहीं कहता कि खुदावन ने मुझे ये बताया है। सीधी सी बात, साफ हो गई, क्लियर? यस, आमीन। हाँ, बट आई बिलीव देयर विल बी समथिंग हैपन। लेकिन मैं यकीन करता हूं कि ऐसा होगा। यस, लेकिन मैं नबूवत नहीं कर रहा। यस, प्रेडिक्शन। अब मैं आपको कहता हूं, यूना ने तो नबूवत की थी, एल्डर मकसूद साहब। उसने तो प्रेडिक्शन नहीं की। यस सर। यूना ने, वो तो पूरी होनी चाहिए थी 40 दिन के बाद। तो नैनवा का तो तबाह होना लाजिम था। यस,
अब चलो, हम कहते हैं ठीक है, खुदा के नबी ने बोला है कि 77 में उसका ख्याल था, अंदाजा था 77 में दुनिया तबाह हो जाएगी, तो खुदा ने की क्यों नहीं? हाँ? अब यूना के केस में आप खुदा को गलत बोलोगे या यूना को? किसको गलत बोलोगे? खुदा ने बोला, एक मिनट, खुदा ने बोला जा और जाकर बता, इस बात की मुनादी कर, ये खुदावंद का कलाम तुझ पर नाजिल हुआ है, और सेकंड टाइम नाजिल हुआ है, गो निनवे एंड टेल देम। 40 दिन के बाद कौन कह रहा है? खुदा। अब खुदा को बोलो या नबी को बोलो, ये तुमने बोलना है। आमीन। दोनों में से कौन ठीक कौन गलत? हमें तो बाइबल में कुछ भी गलत नहीं लगता है, सब कुछ ठीक ही लगता है। तुम्हें बड़ी परेशानियां हैं। आमीन। और यहां ब्रदर बैनम कह रहा है खुदा ने मुझे बोले ही नहीं। खुदा ने नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से, अपने अंदाजे से, हालात को मद्देनजर रखते हुए ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं 77 में ये हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा। इट इज माई ऑब्जर्वेशन, आई प्रेडिक्ट इट, बट नॉट गॉड टोल्ड मी दिस। तो क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुमने बाइबल वाला चश्मा नहीं लगाया हुआ। बाइबल को पढ़ने के लिए बाइबल वाला चश्मा चाहिए। आपने तंजीमी चश्मा लगाया हुआ है, हसद का चश्मा लगाया हुआ है, नफरत का चश्मा लगाया हुआ है, आपने फिरका वारियत का चश्मा लगाया हुआ है, आपने अपने क्रोध और अना का चश्मा लगाया हुआ है। पहले इसे उतारो और रूह कुदस का चश्मा पहनो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर बाइबल पढ़ो। आमीन। और फिर तुम्हें समझ लगेगा। यस। वरना तुम्हारा काम नहीं है। यस। आमीन। हाँ। और वैसे भी तू हर किसी को पत्थर मारता है। ए पापी, ए शराबी, ए गुनाहगार, ए ज़नाकार, ये पादरी ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यीशु मसीह ने तो उस ज़नाकार औरत को भी पत्थर नहीं मारा। यस सर। तेरे अंदर यीशु की रूह नहीं, तेरे अंदर शैतान की रूह है। आमीन। फकीर फरीसियों की रूह है। वो तो मर गए मगर रूह तो नहीं ना मरी। यस। तेरे जैसों के लिए अभी भी वो घूम रही है। आमीन। जो भी ऐसा, यस, मैं सबको कह रहा हूं। यस सर। यीशु मसीह ने उस औरत को पत्थर मारा। ये आज यूट्यूबर बैठ के कभी किसके नुक्स निकाल, कभी ओए सबसे बड़ा तू पापी है खुद। यीशु मसीह ने कहा अच्छा तुम फकीर फरीसी, तुम पादरी, तुम एल्डर डीकन, तुम अबशर, तुम बड़े बाइबल बिलीवर हो, बड़ी शरीयत को मानते हो, और इस बेचारी को सुबह सुबह पकड़ के ले आए हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। दुनिया के नुक्स निकालने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। आओ आओ, तुम गलत जगह पर आ गए हो। तुम में जो पाक हो इसे पहले पत्थर मारे। आमीन। यस। दुनिया में कोई है ऐसा? सर। ये भूल कभी करना भी नहीं। यस। कि मैं बड़ा पाक हूं, यस सर, मैं बड़ा नेक हूं। यस। हाँ, यस। हमारी नेकी किसी काम की नहीं। यस सर। ये उसकी नेकी है आमीन। कि हमें उसने बचा लिया। आमीन। यस। तो इसीलिए ये बकवास करना बंद करो। यस। वो गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। ओ भाई अपनी जान बचाओ। यस सर। अभी कोई काम ही नहीं रह गया इनके पास। पादरी इतने बेकार किस्म के आ गए हैं कि इनके पास कोई काम ही नहीं रह गया। यस। जाओ कोई नौकरी नौकरी करो, बच्चे पालो। यस सर। तुम्हारे बस का काम नहीं है खिदमत करना, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं वो दूसरों के नुक्स निकालता है। यस सर। जिसके पास काम है वो दूसरों की तरफ देखता भी नहीं है। यस सर।
मुझे क्या, कौन क्या कर रहा है? आमीन। मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूँ। आमीन। वो मजनू को लैला से प्यार हो गया, वो आगे से गुजर गया, कोई दुआ कर रहा था, यस, तो वो सजदे में जाके कहां से गुजर गया है? उसने कहा तू कौन से इश्क में है? तू खुदा के इश्क में पड़ा हुआ है और तुझे सारी दुनियादारी की खबर है। मैं एक लड़की के इश्क में पड़ा हुआ, मुझे किसी की खबर नहीं। यस, हालेलुया। यार जाओ काम करो अपना। तुम्हें पूरी दुनिया के गुनाह नजर आ रहे हैं। यस, यस। वो उसको बोला मजनू को तेरी लैला काली है, उसने बोला तुम्हारे पास आंखें नहीं है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या, सुने सुने सुने, जिसे यीशु मसीह खून से खरीद लेता है, आमीन। सारी दुनिया बोले यीशु मसीह को तेरी कलीसिया ठीक नहीं है, दागदार है, वो काली है, यीशु मसीह बोलेगा उससे अच्छी कोई है ही नहीं। नहीं समझ लगी? सबको समझ नहीं लगी? हाँ बैठो। देखें, जिससे प्यार होता है उसके नुक्स नजर नहीं आते। यस सर। नुक्स हमेशा उसके नजर आते हैं जिससे प्यार नहीं आता। आमीन। आपका पेट भरा हुआ है तो बेहतरीन खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप भूखे हो, यस, और दुनिया में उल्टा सिस्टम है, जिसके पास खाना है उसके पास भूख नहीं है, यस, वो बेचारा परहेज ही बड़े करता है। यस सर, आमीन। जिसके पास खाना है वो परहेज बहुत करता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और जिसके पास भूख है उसके पास खाना नहीं है। यस सर, समझ से बाहर है। इसलिए ये काम जिसका है उसको करने दो, ये शैतान का काम है, नुक्स निकालना, यस सर, गलतियां निकालना, मोहब्बत गुनाहों पे पर्दा डालती। आमीन। अब शैतान ने सब मसीहत के अंदर आपस में सबको बहुत तेजी से लड़ा दिया, यस, क्योंकि मीडिया का दौर है, तो वो नहीं चाहता कि मसीह एक पेज पर आ जाए, वो नहीं चाहता कि क्रिश्चियन एक हो जाए। यस सर, वो आपस में लड़ा रहे, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो इसके खान में एक फूंक मार दी जाती है। यस, ओए तू बड़ा खास है। और हर बंदा दुनिया में जो भी आता है उसके कान में एक फूंक मारी जाती, तू बड़ा खास है। वो आकड़ में घूम रहा है, मैं बड़ा खास हूं, मैं बड़ा खास हूं। स्टीफन भाई मुंह संभाल के बात करो, मैं बड़ा खास हूं। अब वो बोलेगा मुझे भी यही बोला था, मैं बड़ा खास हूं। यस, हालेलुया। हर बंदा इस खुशफहमी में घूम रहा है, मैं बड़ा खास हूं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या हो जाएगा। अबे तू नहीं होगा, जब तू नहीं था तो दुनिया चल रही थी, आमीन। तू नहीं होगा दुनिया चलती रहेगी। Yes. कोई खास नहीं है, खास सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके अलावा कोई खास नहीं है। यस सर, सब आम है, आम। आमीन। हाँ बैठे। यस, तो हर कोई अकड़ में घूमे, मैं बड़ा खास हूं। चुप कर, यस सर, सबको यही बोला हुआ है। इसलिए कोई किसी की सुनता ही नहीं है। शैतान बहुत तेज है, क्योंकि लोगों को पता तो है नहीं खुदा की आवाज क्या और शैतान की क्या। यस, तो नबी की 6 नबूवतें, 6 नहीं बहुत सारी हैं, यस सर, बहुत सारी हैं जो पूरी हुई हैं, आमीन। और जो अभी रह गई हैं वो भी होंगी। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि नबी बोले ओ और पूरा हालेलुया। हो। नेवर एवर। यस, एक और मैं आपको बताता हूं, ये तो था अंबिया असगर की लिस्ट में यूना। अब अंबिया अकबर को भी देख लेते हैं।
देखना चाहते हैं? आमीन। हाँ चलें, आए, खोले भाई, बाइबल खोले। आप बाइबल को मानते हैं? हम भी बाइबल को मानते हैं। बाइबल जो कहती है अटल है, डन, खत्म। और सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही ऐसा खादम आया है जिसका नारा ये रहा, जिसका स्लोगन ये था, नारा ये था, कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, और वो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। आओ जरा ओरिजिनल वर्ड में, ओरिजिनल वर्ड को देखते हैं। तुम बैठ बैठ के बातें करते हो। ईसाया की किताब 38 चैप्टर और उसकी पहली आयत से जरा पढ़ें। In those days was Hezekiah sick unto death. The book of Isaiah, chapter number 38. देखो, दुनिया खुदा को ढूंढने निकली है, खुदा मिलता नहीं है। खुदा क्यों? क्योंकि खुदा कहीं है ही नहीं। खुदा ऑलरेडी आपके साथ है, आपके दिल में है। खुदा को ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कहीं वो हमसे अलग ना हो जाए। वो आपके साथ है भाई। वो आपके दिल के अंदर। मंदिर, ओरिजिनल मंदिर कौन सा है? व्हाट इज द रियल टेम्पल ऑफ गॉड? दिल। क्या तुम नहीं जानते? तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, मंदिर हो, हैकल हो, घर हो, खेमा हो। तो यहाँ बस कोशिश करो यहाँ से निकल ना जाए। और जब वो निकल जाता तुम ढीठ बन जाते हो। जब वो निकल जाता तुम घमंडी बन जाते हो। जब वो निकल जाता है, इल्म आ जाता है, तो तुम कहते हो मैं बड़ा खास हूं। सारे ही हैं। आलम की निशानी ये है कि वो जितना भी बड़ा आलम हो, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। ये ओरिजिनल आलम की निशानी हो, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कमजोर समझता है, उसको जोरावर समझता है। आमीन। हाँ जी, आप पढ़ें जरा। द बुक ऑफ Isaiah, chapter number 38, and we shall read from verse number 1. 38. In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord. खुदावंद यूं फरमाता है, उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा, उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। करीबुल मर्ग, अभी चला गया, अभी चला गया। कुछ मिनटों बाद भी जा सकता हूं, कुछ घंटों बाद भी जा सकता हूं। यस। करीबुल मर्ग का मतलब यही होता है। यस। नियर टू डेथ। तो Isaiah, prophet the Isaiah, he came to him and told him, please read it. और यशाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा। Listen, किसने? यशाया नबी कौन था? आमोस का बेटा। आमोस का बेटा, और अंबिया अकबर में आता है। बड़ा नबी जिसको कहते हैं। आमीन। और ये बड़े छोटे भी ये मिशनों ने बनाए हुए हैं। नबी तो नबी होता है। आमीन। तू बड़ा इंसान तो छोटा इंसान, अबे इंसान है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यस सर। हालेलुया। ऐसी टैग लगाते रहते हैं जी। आकर उससे कहा, ये मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ, थियोलॉजिकल सेमिनरी वालों की, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, इसीलिए बोल रहा हूँ जी। पास आकर उससे कहा कि खुदावन यूं फरमाता है। लिसन केयरफुली, थस से द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा, ये से क्या कह रहे? खुदावन यूं फरमाता है। आई एम नॉट टेलिंग यू मिस्टर किंग,
But God told me, Yes. thus saith the Lord. Amen. I want to warn you because I got the message from God. Yes. It is for you. Yes. Listen carefully. Amen. Thus saith the Lord. Yes. अब जब ये बात है तो ये पक्की नबूवत है खुदा की। Amen. अब चेक तुमने करना है। Yes. जी पढ़े जरा आगे पढ़े। खुदावन यूं फरमाता है खुदावन यूं फरमाता कि है तू अपने घर का इंतजाम कर दे। अपने घर के इंतजाम कर ले भाई, तेरे दिन पूरे। Yes. एंड आ गया तेरा। Yes. तू समझ रहा था तेरा एंड नहीं होगा, तेरे बड़ों का हुआ, तेरा क्यों नहीं होगा? Yes. Amen. थोड़ा गुरूर कम कर अपना, घमंड कम कर, थोड़ा इंसान का बच्चा बन के चल। Yes. बादशाह बन गया तो क्या हुआ? एक वक्त था तू ठीक था, लेकिन थोड़ा नीचे आ जा, नीचे आ जा, Yes. अपनी औकात में आ जा। Yes. जी क्योंकि तू मर जाएगा। सुन ले, तू मर, क्या नबूवत की गई है? तू मर जाएगा जी। और बचने का नहीं। अब दूसरा भी बचने का कोई चक्कर ही नहीं है। Yes. नहीं मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं आगा खान में इलाज कराऊंगा। अबे तू आगा खान के बाप के पास भी चला जा, हालेलुया। तू अमेरिका में इलाज करा। Yes. जब खुदा ने कह दिया है आमीन। तो डन है। आमीन। कईयों को अपने पैसे का बड़ा घमंड होता है। Yes sir. बचने का जी आगे बढ़े। खुदावंद फरमाता है तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया। अब देखो हिजकिय्याह सीधा हो गया। Yes, आमीन। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे नर्स के पास नहीं जाना है, Yes. मुझे आगा खान में और मुझे जिना में या मुझे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में या मुझे अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं यूरोप में इलाज करवाने नहीं जाना है। Yes. मुझे सीधा यीशु मसीह की हजूरी में। हालेलुया। He knew. Yes. He knew. He found a right way. Yes. He found a right way. Yes. Hallelujah. हालेलुया। आमीन। किधर गया वो? तुम्हारे पास तो इतवार को टाइम नहीं है खुदा के लिए। Yes. 6 दिन काम कर करके तुम्हारा बुरा हाल, बुरी सेहत, बुरी हालात हैं। Yes sir. दिन रात 2-2 नौकरियां करके तू रोटी भी पेट भर के नहीं खा सकता है। Yes sir. ये जिंदगी है, ये गुलामी है, Yes. जिंदगी नहीं है। Yes sir. आमीन। कल को मर जाएगा मेहनत कर करके, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। Yes sir. हिजकिय्याह को पता था अब कोई काम नहीं आएगा, Yes. क्योंकि ये 10 से द लॉर्ड है। Yes. ये खुदावंद ने फरमाया है। Yes. इसकी नबूवत हो चुकी है। आमीन। ये अंदाजा नहीं है, Yes. ये नबूवत है। आमीन। हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है। तू बादशाह से ज्यादा मसरूफ है। सारा पाकिस्तान तो तू ही चला रहा है। Yes. ऐसे लोग फजूल बातें करते हैं। Yes. सीधा हो जा, Yes. कुछ नहीं है घमंड में। Yes sir. यकीन जानो, खाली करके जिंदगी अपनी गुजारो, तुम्हें जीने का मजा आएगा। आमीन। आमीन। मजा आएगा जीने का तुम्हें। Yes sir. तुम बोलोगे क्या जबरदस्त लाइफ गुजर रही है। Yes sir. खुदा का कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ। उसने कहा तू बचने वाला नहीं। अब उसने क्या किया? वो सीधा दुआ में चला गया। Yes. देखो, जब डॉक्टरों ने कहना है कि इसे घर ले जाओ, इसकी खिदमत करो, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तो दुआ ही करनी है। Yes. तो मैं पहले ही कर लेता हूं। आमीन। Yes sir. तो वो पहली दुआ में चला गया। Yes. अब नबूवत क्या की गई है? तू बचेगा, नहीं। तू मरेगा। Yes. अब इसको मरना चाहिए। Yes. अगर ये नहीं मरता तो क्या यशायाह नबी झूठा?
नो सर। हाँ तुम तो कह रहे हो नो सर, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। यस हाँ यस नबूवत की है ना, यस सर। तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। यस करीबुल मर्ग था, एंड था। कह रहा हूं कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों के बाद उसने खत्म हो जाना था। और ये साया ने बोला नबी बहुत बड़ा है। यस ये वो नबी है जिसको पूरी बाइबल की सैर करवाई गई है। यस सर। छोटा नबी नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये साया की ये नबूवत उसी वक्त पूरी हुई? नो सर। नो नो नो। अब तुम जैसे लोग या पादरी यस या पास्टर, उन्होंने तो शोर डाल देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर नफरत है। यस सर। तुम खुदा से पूछते नहीं हो, तुम अपनी नफरत से पूछ के चलते हो। यस सर। हाँ नफरत, अब क्या करना है? यस कुछ भी हो जाए तूने नहीं मानना, ये तेरा गुमंड है, गुमंड। यस आमीन। मर जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन हिजकिय्याह नहीं मरा। यस अब ये साया की नबूवत तो दिखने में गलत लग रही है। अब मैं कहता हूँ स्टीफन भाई, फिर स्टीफन भाई आ गए, चलो डैनियल को पकड़ते हैं हम। जाके स्टीफन भाई को बोल दे खुदा ने मुझे बोला, और जाके बोल दे। और वो दुआ करता है, वो मरता ही नहीं। अब स्टीफन भाई चल निकल झूठे, दूसरे ही बोले है निकल झूठे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? रियलिटी तो यही है। लिटरली रियलिटी यही है। यस सर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब नबी बोले 77 में दुनिया तबाह, नबूवत नहीं मैं कर रहा, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। उसको इतना इशू बना दिया दुनिया ने। यस सर। असल में दुनिया ने नहीं बनाया, शैतान ने बनाया। यस सर। शैतान नहीं चाहता तुम ठीक जगह पे आ जाओ। यस सर। तो यशायाह को क्या बोलोगे? बनाओ ना जरा वीडियो। क्या बात है। यूना को क्या बोलोगे? अभी तो और भी बहुत सारे हवाले हैं। यस सर। हाँ हो गई ना गलती, रास्ते में जा रहा है बता के तू मर जाएगा, बंदोबस्त कर ले, और रास्ते में जाता फिर खुदा कहते वापिस जा। यस क्योंकि वो दुआ में बैठ गया। यस सर। जब दुआ में बैठ गया खुदा ने बोला वापिस जा, और जाके बोला अब तू 15 साल तेरे बढ़ गए। अब खुदा तेरी पहली बात माने या दूसरी माने? सोचो। यस यस सर। सोचो, मेरे पास तो जवाब भी हैं इनके। आमीन। देखो ना, हम पाकरू की रहनुमाई के मुताबिक चलते हैं। यस सर। मुझे खुदा ने सब कुछ समझा दिया हुआ है। आमीन। मुझे हर चीज क्लियर नजर आती है। यस इसलिए मैं उलझन का शिकार ही नहीं हूँ। यस नबी के बारे में कोई उलझन नहीं है, बाइबल के बारे में कोई उलझन नहीं है, मैसेज के बारे में कोई उलझन नहीं है। उलझने जब निकल जाते हैं फिर तो बंदा सुकून में आता है। यस जब तक उलझन में रहेगा सुकून में कहां से आएगा? आमीन। तो इसीलिए तो लोग उलझन में, इसलिए सुकून में नहीं है। यस सर। सुकून तो तब आएगा जब उलझन से निकलोगे। यस जब मैस से निकलोगे तो फिर तो आप मुत्तमिन हो जाओगे। आमीन। समझ लग गई आपको? हाँ, तो आई एम टोटली कंप्लीटली क्लियर। यस I don't have any doubt on the message, prophet or Bible. Never, never, never. Everything are perfectly correct. यस कई लोग क्रिश्चियन होते हुए डाउट में घूम रहे हैं। यस तुम्हें इस चर्च की जरूरत है। आमीन। मैं सच्ची कह रहा हूं, यस सर। तुम्हें मैसेज की जरूरत है। आमीन। जहां तुम्हें बात समझ लगे। उस स्कूल में क्या करना है जाके जहां बात ही समझ ना लगे। आमीन। फीस भी भर रहे हो, यस यूनिफॉर्म भी खरीद के दे Yes. रहे हो, जूते भी ले रहे हो, यस ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, और बच्चे को कुछ भी समझ नहीं लग रही, तो बेहतर है वो स्कूल छोड़ दो। आमीन। ऐसे ही पैसा जाया नहीं करो, टाइम भी जाया नहीं करो, यस और वो स्कूल ढूंढो जहां समझ लगे। आमीन।
हाँ, खत्म किया मैंने इसको पढ़ के, बस इतना ही बहुत है। पढ़े भाई। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया खुदावंद से दुआ और की, खुदावंद से दुआ की और कहा है खुदावंद, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। आगे सुने। और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जरा जार रोया, जार he wept bitterly, रोया। अब फिर खुदा ने पैगाम भेज दिया, और जा यार, जा, उसको बोल ठीक है यार। आमीन। अब खुदा को कौन समझाए? यस सर, खुदा तो खुदा है। आमीन। लेकिन अंदाजे लगाने वाले, नफरत करने वाले, जो यशायाह से नफरत करते हो, झूठा नबी, जो यूना से नफरत, झूठा नबी, जो कहीं से सुन लिया होगा, भाई। ब्रदर ब्रैनम कहते एक मरतबा मेरा बेटा जोसेफ छोटा सा था, तो जैसे ही वो आया, हम टेबल पर बैठे हुए थे, द वे ऑफ द ट्रू प्रॉफिट उस मैसेज के अंदर, तो बैठा हुआ था, तो कहते हैं कि एकदम उसने इतना ऐसा लफ्ज बोला जो बिल्कुल ठीक नहीं था, गंदा लफ्ज था। कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मेरी बीवी तो जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी, तो हम बड़े परेशान हुए, और फिर और बच्चा हंस रहा था, बच्चे को कुछ नहीं, और फिर जाके मैंने बच्चे को बोला ये कहाँ से सीखा तूने? बच्चा सहम गया, और सहम कर रोना लग गया, और जैसे ही रोने लग गया, कहते डैडी क्या हुआ है? अब बच्चे को नहीं पता ये लफ्ज क्या है। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अच्छा, कह रहे डैडी मुझे तो नहीं पता, मैं तो स्कूल में क्लासरूम में बैठा हुआ था, वहां बच्चे ये लफ्ज बोल रहे थे, मैंने भी वही बोल दिया। आप समझ रहे हैं आप? यस सर। कि ये गंदगी इधर उधर से आती है, तुम्हें पता नहीं होता ये है क्या। यस सर। ऐसे ही ये ऐसे पादरी हैं जो सुनी सुनाई बातें, ना तक कि तुम मुझे बताओ, अगर आपको फला किसी ने गलत भी तो लगा देते हैं लोग, ये फला बंदा जो है ये ऐसे ऐसे वो पकड़ा गया है, अब पहले तहकीक तो कर लो, उसके पास जाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद तुम कोई बयान दो, बस। वो भले झूठा इल्जाम लगाओ, आजकल तो एआई का जमाना है। yes, आजकल तो लड़के किसी भी लड़की की तस्वीर साथ जोड़ लेते हैं। yes, अब बदनाम करना तो मुश्किल ही नहीं है। yes, आवाजें बदल जाती है, शक्लें बदल जाती हैं, yes, और ऐसे लोग, तो किसी ने आके बोल दिया डैनियल झूठा है, ईसा नबी झूठा है, और उसने भी सुनी सुनाई बात कर दी। यूना ठीक नहीं है, भागा हुआ भगोड़ा है, वो नबी नहीं हो सकता। अबे वो नबी नहीं हो सकता, तू 2% का पादरी कैसे हो सकता है? yes, सर। तुझे उसकी नाफरमानी नजर आ गई है, तेरी करोड़ों गलतियां तुझे नजर नहीं आ रही। yes, यहां तो सारी पाप में पैदा हुए ना। yes, सर। तो कोई दावा तो नहीं कर सकता है, इसलिए थोड़ा तमीज से चलने की जरूरत है। आमीन। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। yes, सर। कि जैसे मुझे ही सब कुछ पता है, तेरे कान में शैतान ने बोल दिया तू खास है। आमीन। तू खास है, अबे सबको बोले, कईयों को समझ लग गई है, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं करो। यशायाह ने बोला खुदावंद यूं फरमाता है तू मरेगा तो मरना चाहिए उसको, yes, बस, फिर नबूवत पूरी होगी। yes, हाँ, आगे चलें जरा। इसको भी पढ़ के ख़त्म किया, तो और भी हवाले हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो फिर अगले इतवार सेकंड पार्ट के अंदर आपको ये सब जो कुछ आपको मुतजाद नज़र आ रहा है, जो कुछ आपको कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, इसको क्लियर करूँगा मैं। yes, जी, ये पढ़ दें, कंप्लीट हो गया। आगे तब हिजकिय्याह जार रोया। हाँ, तब खुदावन का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ। लो जी, फिर नाजिल हुआ। ओ यूना पर भी दोबारा नाजिल हुआ। yes, एक बार में नहीं गया, yes, दूसरी बार जा यार, मेरा कलाम है, जा। yes,
और यूना की कहानी पढ़ना जाके, वो वहां बैठ के वो भी रो रहा है। मुझे पता था तूने मारना है नहीं है। आमीन। वो ऐसे मुझे बदनाम करवा रहा है। यस, देख लें, बाइबल पढ़ लें, बाइबल में लिखा है। ऐसा ही है सर। घर पे जाके पढ़ना, फिर मेरे साथ अगले इतवार